again. We are resuming with the chapter 1 of class 10th, that is chemical reactions and equations. In the last class, we have taken up about how to balance a chemical reaction. And I promised you that in the next video, we will be taking about the types of chemical reactions. Now, there are different types of chemical reactions. Herein, in class 10th, we are going to study about 5 different types of chemical reactions. So if I talk about the first chemical reaction which we will be taking up is the combination reaction. Then I'll be telling you about the decomposition reaction, displacement reaction, double displacement reaction, oxidation and reduction reactions. Now before I start with all the reactions, I'll be first dealing with the combination reaction. Combination reaction, as the name itself tells you, that there is combination of different reactants to form some product. So basically if we talk about these type of reactions, there may be 2 or more than 2 reactants. Definitely दो तो ज़रूरी हैं, 2 reactants या 2 से ज़्यादा reactants जब react करते हैं, then the product is formed. So such type of reaction is known as combination reaction. So I'll be taking up the examples for the same. So let us start with first the combination reactions. Okay. Combination reaction, as I told you, there is a combination of 2 or more reactants. So let us take a reaction wherein calcium oxide, it reacts with water. So now if you see, there are 2 reactants, calcium oxide and water. So when this react with each other, there is a formation of a compound which is known as calcium hydroxide. And in this process, in this reaction, heat is also liberated. Now I hope you all remember that whenever there is liberation of heat in a chemical reaction, then such a chemical reaction is known as exothermic reaction. Exo means something being released, exit हो रही है, ठीक है. तो heat is released, so thermic relates to heat. So exothermic reaction is a reaction wherein heat is liberated. Now you see calcium oxide, I told you that no chemical reaction is complete until and unless we balance it. तो हम इसको balance करेंगे सबसे पहले. If you see Ca here on the right left hand side only 1 atom, दूसरी तरफ भी एक ही atom है. Oxygen 2 atoms, दूसरी side भी 2 atoms, hydrogen 2 atoms, and the product side also it is 2 atoms. That means it is balanced. Now we need to write the states of the matter also. So calcium oxide basically is solid in nature. Water, as you see, it is liquid in nature. And calcium hydroxide, when it is formed, since it is formed in water, so it is aqueous. So we will be writing it this way. One more thing, यहाँ पे आपको ना कुछ ऐसे नाम भी पता होने चाहिए, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विकलाइम भी कहते हैं. सो कैल्शियम ऑक्साइड इज क्विकलाइम एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ना हम स्लेक्ड लाइम भी कहते हैं. तो ये वाले नेम्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि इसमें आपका कई बार ऐसे ही रिएक्शन आ जाता है एग्जाम में कि व्हाट हैपेंस व्हेन क्विकलाइम रिएक्ट्स विद वाटर, या हाउ इज स्लेक्ड लाइम फॉर्म्ड. तो डेफिनेटली यू शुड नो कि व्हेनेवर क्विकलाइम रिएक्ट्स विद वाटर इट विल फॉर्म स्लेक्ड लाइम. सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. क्यों होगा ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन? क्योंकि 2 रिएक्टेंट्स ने कंबाइन किया और एक प्रोडक्ट बनाया. ओके. अब एक और चीज़ यहाँ पे इस पर्टिकुलर रिएक्शन में बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम इस सोल्यूशन को अगर हम सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले, दैट इज स्लेक्ड लाइम और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका सोल्यूशन जो है अगर हम इसको लेते हैं ना, इसको यूज़ करते हैं हम वाइट वॉशिंग में भी. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये आपका आता है. हम वाइट वॉशिंग में इसको क्यों यूज़ करते हैं?
सी जब भी आपके घर में वाइट वॉशिंग होती है तो आप देखते होंगे जिस दिन वाइट वॉश हुआ उस दिन दीवारें थोड़ी रफ लगती हैं, लेकिन उसके 2 या 3 दिन बाद दीवार बहुत शाइनी लुक देती है। वजह क्या होती है कि ड्यूरिंग दिस रिएक्शन ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ये हमने वाइट वॉश में लेबर ने लगा दिया दीवारों पे। अब यू नो कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, तो जब भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड तो एक प्रोडक्ट बनता है विच वी कॉल एज कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है। एंड साथ में ऑफ कोर्स वाटर वेपर्स भी रिलीज होते हैं। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है दिस गिव्स अ शाइनी फिनिश टू योर वॉल। तो इस तरीके से ये वाला रिएक्शन आपका आता है। व्हाट गिव्स दी शाइनी फिनिश टू द वॉल आफ्टर वाइट वॉशिंग। तो बेसिकली यू विल हैव टू राइट दिस कि वाइट वॉश में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब दीवारों पे लगता है आफ्टर सम टाइम 2-3 डेज वो रिएक्शन करता रहता है कार्बन डाइऑक्साइड से और धीरे धीरे ये कैल्शियम कार्बोनेट ये प्रोडक्ट बनता है एंड दिस गिव्स अ शाइनी फिनिश। Okay, this is one of the combination reactions we have talked about, but now अभी और आपको मैं examples देती हूँ combination reaction के। देखो बहुत ही सिंपल सा है, अभी मैंने आपसे कहा कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो इसमें भी अगर इफ़ आई टॉक अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अब इसको भी बैलेंस कर लीजिए, बैलेंस तो ये वैसे है लेकिन स्टेट्स ऑफ मैटर लिख देते हैं। कार्बन इज इन सॉलिड फॉर्म, ऑक्सीजन इज इन गैस फॉर्म एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो इन गैस फॉर्म। दिस इज ऑल्सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बहुत सिंपल सा एक और रिएक्शन आपको दे रही हूँ, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू वाटर। आप देखो इन सब में एटलीस्ट आपके 2 रिएक्टेंट्स हैं एंड दे आर फॉर्मिंग अ सिंगल प्रोडक्ट। कई बार सिंगल प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी रिलीज होती है। तो दिस इज अगेन गैसेस इन नेचर, दिस इज लिक्विड इन नेचर। ओके, एक और आपको आपकी बुक में है नेचुरल गैस, दिस इज मीथेन CH4, दिस इज इन गैसियस फॉर्म। when reacts with oxygen it will again give carbon dioxide plus water. Okay, now if I balance it, आप देख लीजिए C1H आपके यहाँ पे, तो I'll put up 2 here to balance it. If I want to balance oxygen definitely यहाँ पे भी आपका 2 आ गया, fine. This is balanced. अब this is in gaseous form, oxygen is also in gaseous form, carbon dioxide also in gaseous form. और जब ये, क्योंकि this is a combustion reaction, combination तो है ही, लेकिन ऑक्सीजन के साथ साथ मीथेन या नेचुरल गैस का क्या हो रहा है, कंबशन हो रहा है। तो कंबशन में आपको वाटर किस फॉर्म में मिलेगा, वाटर वेपर के फॉर्म में मिलेगा, इसलिए हमने यहाँ पे गैस लिखा है। So all these reactions if you see are the combination reactions because in this case 2 reactants are combining together forming a single product. Okay, now herein एक बहुत important combination reaction की बात मैं करूँगी जिसमें हम respiration लेकर आएंगे। respiration reaction, you remember respiration में क्या होता है, respiration reaction is also वन ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। इसमें क्या होता है रेस्पिरेशन में, ग्लूकोज दैट इज C6H12O6, तो इसका क्या हो रहा होता है, कॉम्बिनेशन होता है विद ऑक्सीजन। दिस इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में एक्चुअली बायोलॉजिकली होता है क्या है, कंबशन ऑफ ग्लूकोज इन आवर बॉडी, ठीक है। और इससे लिबरेट क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर वेपर्स and also lot amount of energy, and this energy is usually heat energy. So if you again balance it, तो मैं balance करना चाहूँ तो इसको 6 यहाँ पे किया, carbon also 6 and here also 6. If you see C6 here also carbon 6, H12, yes, oxygen is also balanced, ठीक है, fine.
नाउ ये जो एनर्जी रिलीज हुई है, इफ़ यू सी दीज आर दी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ये आपका कई बार बोर्ड में ये क्वेश्चन आता है, गिव रिएक्शंस ऑफ एक्सोथर्मिक केमिकल इक्वेशंस। तो ये आपका जिसमें भी एनर्जी प्रोड्यूस हुई, जैसे कि हमने मीथेन बर्न किया या नेचुरल गैस बर्न किया तो भी एनर्जी प्रोड्यूस हुई। जब हमने कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में मिलाया था, दैट इज़ ऑल्सो एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सोथर्मिक एज वेल एज कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक बेसिकली वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें एनर्जी लिबरेट हो रही है, तो इसलिए हम उनको एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल देंगे। ओके, इवन एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर है दैट इज़ ऑल्सो एक्सोथर्मिक, क्योंकि जब भी वेजिटेबल मैटर जो हम कंपोस्ट पेट के लिए डालते हैं उसका डीकम्पोजिशन हो रहा होता है, दैट इज़ ऑल्सो liberation, there is also a liberation of energy. So this is also an example of exothermic reaction. सो आई थिंक आपको ये समझ में आया है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या क्या हैं. आई एम रिपीटिंग इन कंक्लूजन कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस वेयर इन टू और मोर रिएक्टेंट्स दे रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, एंड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन हीट एनर्जी और अदर गैसेस और वाटर is also liberated. In some of the reactions heat energy is liberated. In some of the reactions there could be formation of water, there could be formation of carbon dioxide or any other gas. So combination reaction, I hope आपको इतना समझ में आ गया है. Moving ahead to another reaction, that is the decomposition reaction. ओके, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन में देखो क्या हो रहा है. डीकॉम्पोजिशन मीन्स डीकम्पोज होना, किसी चीज़ को ब्रेक डाउन हो जाना. ब्रेक डाउन होना, अब ब्रेक डाउन होने के लिए कोई ना कोई एक आपको कुछ देना है. आई मीन डिकम्पोज हो रहा है, किसी वजह से होगा डिकम्पोज. जैसे कि व्हाट कैन यू प्रोवाइड, यू कैन ऑल्सो प्रोवाइड हीट एनर्जी टू समथिंग. जैसे किसी चीज़ को आपको तोड़ना है, डिकम्पोज करना है, तो तोड़ने के लिए आपको कोई भी जो भी रिएक्टेंट मिला है उसको ब्रेक डाउन करना है ड्यू टू प्रोविजन ऑफ समथिंग. तो यहाँ पे क्या प्रोवाइड करते हैं, इट कुड बी ड्यू टू हीट, it could be due to electricity, it could be due to sunlight और फोटोलिटिक भी बोलते हैं हम उसको. तो सबसे पहले जानते हैं कि डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन होता क्या है. डीकॉम्पोजिशन मीन्स किसी भी रिएक्टेंट का टूटना, डिकम्पोज होना. तो बेसिकली इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन देयर इज ओनली वन रिएक्टेंट, एंड दैट due to the supply of heat or light or electricity that decomposes into different products. तो ये जस्ट कॉम्बिनेशन का थोड़ा उल्टा है. कॉम्बिनेशन में क्या था, हमारा रिएक्टेंट साइड पे दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स थे और उससे सिर्फ एक प्रोडक्ट बन रहा था. डिकॉम्पोजिशन में क्या है, एक रिएक्टेंट है एंड ड्यू टू द प्रोविजन ऑफ सम हीट or light or electricity, that particular reactant is breaking down into the products. So now when I say products, so there will be definitely formation of two or more than two compounds. Okay, so let us take an example. For example, हम लेते हैं, चलिए, ferrous sulfate FeSO4. it decomposes on heating, और जब वो decompose होता है तो it forms a compound which is ferric oxide, and साथ में there is liberation of sulfur dioxide gas and also sulfur trioxide gas. So now सबसे पहले कुछ भी बात बताने से पहले we will be balancing the equation. इफ़ यू सी यहाँ पे 2 आयरन के 2 हैं इधर एटम्स प्रोडक्ट साइड पे, तो हमने रिएक्टेंट साइड पे भी 2 लगा दिए. तो 2 FeSO4, आई थिंक नाउ इट इज़ बैलेंस्ड. सल्फर इज ऑल्सो 2 बोथ द साइड्स, एंड ऑक्सीजन अगर देखें हम रिएक्टेंट साइड पे देयर आर 4 2 8, तो 3 4 5 6 7 8. येस, ऑफ कोर्स इट इज़ बैलेंस्ड. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपके एग्जाम में आता है. फेरस सल्फेट को अगर इफ़ यू ऑब्जर्व इन द लेबोरेटरी, इट इज़ लाइट ग्रीन इन कलर. इट इज़ अ कंपाउंड, क्रिस्टल फॉर्म में होता है, और इसमें मैं आपको बताऊं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी होता है. तो FeSO4 में बेसिकली 7
मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होते हैं विच आर नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. दिस इज समथिंग दैट यू शुड रिमेंबर. ठीक है, 7 वाटर मॉलिक्यूल्स आर दे एग्जिस्ट इन नेचर फेरस सल्फेट के साथ. सो एनी हाउ फेरस सल्फेट बिफोर हीटिंग इट इज़ लाइट ग्रीन इन कलर, लेकिन जब हम हीट करते हैं ना तो ये फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है. एंड फेरिक ऑक्साइड का जो हम कलर चेंज देखते हैं दैट इज़ रेडिश ब्राउन. यहाँ मुझे आपको एक और चीज़ रिकॉल करानी है. अपनी प्रीवियस वीडियो में आई टोल्ड यू दैट वेन एवर देयर इज़ occurrence of a chemical reaction, तो हम क्या देखते हैं उसमें, या तो if there could be change in the product, the change in the color of the reactants when we move to the products, there could be evolution of heat, there could be change in the temperature, there could be evolution of gases, है ना. तो इसमें भी क्या हो रहा है, बड़े आराम से आपको केमिकल रिएक्शन का चेंज पता चलता है. दैट इज़ व्हेन वी हीट ferrous sulfate, which is earlier light green in color, it slowly and gradually changes into reddish brown. तो आपको पता चल जाता है कि ये आपका केमिकल रिएक्शन हो रहा है और ये डिकम्पोज हो गया. दिस इज यू सी, आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक रिएक्टेंट था जो हीट करने पर 3 प्रोडक्ट्स उसने दिए. तो डोंट यू थिंक ये डिकम्पोज हो गया, इट हैज़ ब्रोकन डाउन इनटू 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स. सी, तो एक तो यही आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन है. इफ़ आई मूव अहेड, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस और भी आपको मिलेंगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक अनदर रिएक्शन, आप कैल्शियम कार्बोनेट लीजिए. कैल्शियम कार्बोनेट को भी जब हम हीट करते हैं, सो व्हाट डज इट फॉर्म? इट फॉर्म्स कैल्शियम ऑक्साइड and plus carbon dioxide. Okay, so calcium carbonate, इसको एक और चीज़ याद दिलाती हूँ, दिस इज commonly known as limestone and calcium oxide is commonly known as quicklime. ये मैंने आपको पहले भी बताया अभी. So this is on heating. Again आप देखिए, there is only one reactant which decomposes into 2 products on heating. ठीक है, अगेन यहाँ पे भी हीट यूज़ हुआ है. हीट का ही अगर मैं एक और रिएक्शन लूँ तो वी कैन ऑल्सो टेक अप लेड नाइट्रेट, PbNO3. लेड का वैलेंसी 2 होता है, तो द कंपाउंड फॉर्मेशन विल बी लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस. अगैन ऑन गिविंग हीट टू दिस, इट decomposes to lead oxide plus NO2 plus oxygen. राइट, अगेन आई वॉन्ट टू बैलेंस इट. और मैंने आपको बैलेंसिंग में ये बताया था कि जब भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है तो व्हाट वी कैन डू, हम सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स कंटेनिंग कंपाउंड है उसको देखिए आप. तो अगर मैं लेड को देखूँ, लेड नाइट्रेट, तो यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पे लेड का देयर इज जस्ट 1 एटम, नाइट्रोजन का देयर आर 2 atoms, and oxygen का there are 3 to the 6 atoms. Here in oxygen 2, 4 and 5. So if I put up say 2 here, then definitely I'll be putting 2 here also. हाँ, अब नाइट्रोजन 2 to the 4, तो यहाँ पे आपने 4 लगा दिया. देखिए आप, बैलेंस हो गया. अच्छा, यहाँ पे एक बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ना, इसके फ्यूम्स होते हैं एंड दीज आर ब्राउन फ्यूम्स. ये बहुत कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है वेयर इन द heating of lead nitrate is characterized by the evolution of brown fumes. और CBSE में ये क्वेश्चन आता है, what are these brown fumes of? तो आपको हमेशा याद रखना है, द ब्राउन फ्यूम्स दैट आर लिबरेटेड ड्यूरिंग द थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट आर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. ठीक है. अच्छा, एक चीज़ आपने देखी, मैंने 3 रिएक्शंस अभी तक आपको बताया डीकम्पोजिशन रिएक्शन में, और जिसमें कि डीकम्पोजिशन हो रहा है सिर्फ और सिर्फ हीट की वजह से. तो जहाँ भी डीकम्पोजिशन इज हैपनिंग ड्यू टू हीट, so such decomposition reactions are known as thermal decomposition reaction.
So these are also known as thermal decomposition reaction. अब I told you initially कि decomposition we can also take up due to light as well as due to electricity. So let us take thermal decomposition due to electricity. That is not thermal decomposition, basically it is electrolysis. So electrolysis is actually decomposition reaction due to इलेक्ट्रिसिटी. इसका बहुत कॉमन एग्जाम्पल है हाइड्रोलिसिस और इलेक्ट्रोलिसिस of water. So what happened during electrolysis of water? When water on electrolysis, what does it form? It forms H2 plus O2. That means water in liquid state, further it forms hydrogen gas and oxygen gas. Please balance it out. If I place 2 here, तो इसको आपने बैलेंस करना है इस तरीके से. तो आप ये देखिए, दिस इज ऑल्सो decomposition reaction, but this decomposition reaction is taking place due to the utilization of electricity. Then again, we have another decomposition reaction which is due to light. So herein very common example is decomposition due to sunlight. ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अगेन, क्योंकि डीकम्पोजिशन ड्यू टू सनलाइट आपका यूज होता है जब हम सिल्वर क्लोराइड AgCl को एक्सपोज करते हैं टू सनलाइट. व्हाट हैपेंस? इट ब्रेक्स डाउन और इट डीकम्पोजेस टू सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस. सो नाउ इफ यू सी, अगेन बैलेंस कर दीजिए पहले इसको, यहाँ पे 2 और ये 2. तो सिल्वर क्लोराइड AgCl is solid in nature, this metal is also solid in nature and chlorine is gaseous in nature. You know what? जब भी AgCl को सनलाइट पर एक्सपोज किया जाता है तो हमें ग्रे कलर का कंपाउंड मिलता है. बेसिकली ये ग्रे कलर का कंपाउंड या ग्रे कलर जो हमें ऑब्टेन होता है, ये होता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर. So this is actually grey colored and chlorine gas is also liberated. And similar reaction is also observed when silver bromide is exposed to sunlight. Then again what do we get? Silver metal plus bromine gas. Again if I balance it, it is this way. This is solid. And this is also solid, this is gas. Now this particular characteristic is used in case of black and white photography. आपका ये क्वेश्चन आता है कि what is the commercial use of decomposition due to sunlight? So decomposition due to sunlight reaction, the example is AgCl or AgBr. When it is exposed to sunlight, it forms grey color. It turns grey due to the formation of silver metal, and this particular mechanism or this particular decomposition reaction has its commercial application, which is black and white photography. Now herein one very important thing that again has to be learned in all the decomposition reactions. What have we done? We have supplied energy, whether it is in the form of heat energy, whether it is in the form of electrical energy, or it is in the form of light energy. In all the cases we have actually supplied energy to it. So that is why this type of reaction is known as endothermic reaction.
That means what is endothermic reactions? Endothermic reactions are the reactions wherein heat energy or light energy or electrical energy, I mean any form of energy is being absorbed by the compound or by the system, and then the reaction is taking place. So whenever you are asked about the exothermic and endothermic reactions, you know the difference कि exothermic में heat is evolved or energy is evolved, endothermic में the energy is taken in by the system, by the reactants or by the system. So you know the examples also. In case of exothermic reaction, most common example is respiration, even burning of fuel, burning of natural gas, decomposition of vegetable matter. ये सब कौन से reactions हैं? Exothermic reactions. लेकिन एंडोथर्मिक रिएक्शंस में आप क्या डालेंगे? डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, डीकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट, decomposition of silver chloride. These are all endothermic reactions. आई होप आपको दो टाइप के रिएक्शंस क्लियर हो गए हैं, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन. तो फिर से एक छोटा सा रिकैप लेंगे. कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स मिलते हैं और एक प्रोडक्ट बनता है, जबकि डीकम्पोजिशन रिएक्शन में एक रिएक्टेंट होता है और ड्यू टू एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी इट डीकम्पोजेस इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट दैट कैन बी लिबरेटेड. तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन के, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ये भी आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है. सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए आई होप यू रिमेंबर द रिएक्टिविटी सीरीज. हमेशा हम रिएक्टिविटी सीरीज को फॉलो करते हैं, जिसमें कि द मोर रिएक्टिव एलिमेंट will always displace the less reactive element in its aqueous solution. जैसे कि हम चलिए सबसे पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. इफ आई टेक अप आयरन एंड आई पुट इट, आयरन का आप फिलिंग्स भी ले सकते हैं, आयरन पाउडर भी ले सकते हैं, एंड आई पुट इट इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन. ठीक है, तो आयरन क्या है? सॉलिड फॉर्म में है. कॉपर सल्फेट क्या है? एक्वियस फॉर्म में. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि आप जो लेस रिएक्टिव मेटल का सोल्यूशन है दैट शुड ऑलवेज बी इन सोल्यूशन फॉर्म. तो ये यहाँ पे आपका सोल्यूशन फॉर्म में है कॉपर सल्फेट. तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसकी वजह है कि हम क्यों कहते हैं कि ये एक्वियस फॉर्म में होगा, क्योंकि एक्वियस फॉर्म में ही ये कॉपर आयंस Cu2 पॉजिटिव आयंस और सल्फेट SO4 2 नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट होगा. अगर ये एक्वियस सोल्यूशन में नहीं होगा तो इट विल नॉट कन्वर्ट इनटू इट्स आयंस और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं कैरी ऑन होगा. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैरी ऑन होने के लिए द मोर रिएक्टिव एलिमेंट, दैट इज इन दिस रिएक्शन द मोर रिएक्टिव एलिमेंट इज आयरन. इसको हम आपका सॉलिड फॉर्म में लेंगे, लेकिन जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट होगा दैट विल बी इन योर एक्वियस फॉर्म. ठीक है, तो अब एक्वियस फॉर्म में आने की वजह से क्या हुआ? ये आयरन में कन्वर्ट हो गया. अब आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव देन कॉपर, व्हाट विल इट डू? आयरन को भी हमने डाल दिया, वो भी तो आपका एक्वियस सॉल्यूशन में चला गया, तो आयरन क्या करेगा? कॉपर को डिस्प्लेस करेगा. वाई? क्योंकि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. तो क्या फॉर्म करेगा? आयरन सल्फेट FeSO4. फाइन. एंड FeSO4, नाउ दिस इज इन एक्वियस फॉर्म. एंड व्हाट एल्स इज रिमेनिंग? कॉपर. कॉपर गेट्स डिपॉजिटेड, दिस इज इन सॉलिड फॉर्म. तो अगर आप ये देखें आयरन फिलिंग्स और आयरन व्हेन रिएक्ट्स विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, it will give you iron sulfate solution plus copper in the solid form. अच्छा, ये भी आपको ना कलर चेंज से बड़े आराम से दिखाई देगा. जैसे कॉपर सल्फेट इज ब्लू इन कलर. ठीक है, ये कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इज, दिस इज ब्लू सोल्यूशन, ब्लू इन कलर. एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली व्हाट यू विल सी, दिस फेरस सल्फेट सोल्यूशन इज लाइट ग्रीन इन कलर और यू कैन से ग्रीन इन कलर.
तो ये जो चेंज है ये बहुत अच्छे से आपको विजिबल होगा। एंड दिस इज़ अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों कहा, क्योंकि इसमें the more reactive element has displaced the less reactive element, that is यहाँ पे iron has displaced copper in its aqueous solution। copper किस aqueous solution में था, copper sulfate aqueous solution में। इसके और reactions लेते हैं हम। say for example अगर if I take up now zinc and zinc को again if I react with copper sulfate, सो वॉट आई टोल्ड यू अर्लियर, ये सॉलिड फॉर्म में, ये एक्विस फॉर्म में, सो दैट कॉपर सल्फेट कैन dissociate into its ions, that is copper 2 positive and SO4 2 negative. Zinc being more reactive than copper, what will it do? It will displace copper from its solution and it will form its own aqueous solution, that is ZnSO4. So this now turns into aqueous and copper it can precipitate out in the solid form. So you see this is again a balanced equation. हाँ, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि अगर इसका मैंने उल्टा रिएक्शन लिखा होता है, जैसे मैंने कॉपर को डाला होता है जिंक सल्फेट रिएक्शन में, डू यू थिंक अब कोई रिएक्शन होगा? नहीं, इट विल शो नो रिएक्शन। वाई? क्योंकि यहाँ पर कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, सो इट कैन नॉट डिस्प्लेस इन जिंक सल्फेट सोल्यूशन। जिंक को वो डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, और यू कैन से कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक। तो कॉपर में उतनी ताकत नहीं है कि वो उसको डिस्प्लेस करके अपना कोई सोल्यूशन बना सके। सो दिस इज another fact about displacement reactions. That means for displacement reactions to occur, two things has to be remembered. One, the aqueous solution of the less reactive element should be formed, and if the aqueous solution of more reactive element is there, then there will be no reaction taking place. So you should also remember the reactivity series. इसके लिए आप reactivity series को ज़रूर ध्यान में रखें। एक और reaction आपको यहाँ पे discuss करती हूँ। For example, lead when it reacts with copper chloride solution. Again, this is aqueous and lead is in solid form. So what will happen as a result? Lead being more reactive than copper, what will it do? It will displace copper and it will itself form lead chloride plus copper. Again, lead chloride being aqueous and copper will be in solid form. So this is how displacement reaction takes place. Next reaction, if I move ahead, is again although a displacement reaction, but we can herein we will be discussing about double displacement. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और ठीक है ये भी बिल्कुल वैसा ही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसा, लेकिन इसमें क्या है कि पहले हम क्या कह रहे थे कि एक जो मोर रिएक्टिव मेटल है दैट इज टेकन इन सॉलिड फॉर्म एंड दी लेस रिएक्टिव मेटल का जो सॉल्ट है उसका हम एक्वस सोल्यूशन ले रहे थे, उसी के सॉल्ट का हम एक्वस सोल्यूशन ले रहे थे। इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट में हमारे पास अभी भी दो रिएक्टेंट्स होंगे लेकिन दोनों ही एक्वस फॉर्म में होंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से सोडियम सल्फेट Na2SO4 is sodium sulfate, this will be in aqueous form, and when I react it with barium chloride, that is BaCl2, and again this is also in aqueous form, what will happen? Barium chloride in aqueous form will form two ions, that is barium 2 positive and chlorine negative, again 2 because BaCl2 2 atoms of chlorine, so 2 ions. Similarly in aqueous form sodium will also be converted, sodium and sulfate will also be converted into their respective ionic form. Now what will happen? Na will displace barium and will form a bond with Cl. So what is happening here? NaCl is being formed, one thing, and Ba
will bind now, because now barium ions are also there in aqueous solution. So barium will react with sulfate and it will form a salt which is barium sulfate. Now barium sulfate, again balance it please. If I see, I can put 2 here and I think now it is balanced. NaCl, since this is soluble in water, so it will stay in aqueous form, whereas barium sulfate, this is not soluble in water. As a result, it will be precipitated out, so we will be writing its state of matter as solid state. So herein if you see, the two compounds are in their aqueous form. सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए ये प्री रिक्विजिट है कि आपके जो रिएक्टेंट्स हैं वो दोनों ही एक्वस फॉर्म में होंगे, ताकि दोनों के ही आयंस विल बी लिबरेटेड एंड सोडियम, द मोर रिएक्टिव एलिमेंट बेसिकली विल मूव टूवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट एंड इट विल फॉर्म इट्स सॉल्ट. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सोडियम सल्फेट ब्रेक डाउन हुआ और सोडियम आयंस वेंट टू फॉर्म अ सॉल्ट विथ क्लोराइड आयंस, तो सोडियम क्लोराइड बन गया. बेरियम आयंस जो खाली घूम रहे थे, दे ऑल्सो वेंट एंड उन्होंने भी सल्फेट के साथ जाके बॉन्ड बनाया और बेरियम सल्फेट बन गया. तो आप ये देखो ना, सोडियम ने बेरियम को डिस्प्लेस किया, बेरियम ने सल्फेट आयंस के साथ सॉल्ट बना लिया, तो ये क्या हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट. तो दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी, इस पूरे रिएक्शन में बेरियम सल्फेट जो है वो प्रेसिपिटेट फॉर्म में इट कैन बी सीन, मतलब वो प्रेसिपिटेट आउट हुआ है. तो सच अ रिएक्शन जहाँ पे प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है, सच अ रिएक्शन इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. सो दिस इज वन ऑफ अ टाइप. ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके सारे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होंगे. इट्स जस्ट दैट कि बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट आउट हुआ, तो इसलिए हमने इस रिएक्शन में देयर इज अनदर टर्म दैट कैन बी इनकॉर्पोरेटेड. दिस इज ऑल्सो अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. तो आई होप दिस इज क्लियर. डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर थे, बस डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ एक सोल्यूशन वॉज इन एक्विस फॉर्म और दूसरा मोर रिएक्टिव एलिमेंट वॉज इन सॉलिड फॉर्म, और डिस्प्लेस किया मोर रिएक्टिव ने लेस रिएक्टिव को. डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों ही रिएक्टेंट्स एक्विस फॉर्म में थे और आपका एक नया जो प्रोडक्ट है उसमें दोनों ही सॉल्ट्स नए बने. तो दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. Now we will be moving ahead with the last type of reaction, that is oxidation and reduction reaction. Oxidation and reduction reactions. ये थोड़े नए हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस एंड रिडक्शन रिएक्शन. सी ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं, सबसे पहले आप ये समझिए. ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड वन मोर कंडीशन जिसमें हम रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं. बेसिकली ऑक्सीडेशन रिएक्शन में आपका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है और इट कैन ऑल्सो बी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. यानी जिस रिएक्शन में भी या तो आपने देखा कि ऑक्सीजन ऐड ऑन हुआ है या कोई दूसरा रिएक्शन जिसमें कि हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, ये दोनों ही रिएक्शंस जो हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कहलाते हैं. अब रिडक्शन रिएक्शन जस्ट इसका उल्टा है. यानी रिडक्शन रिएक्शन में व्हाट विल हैपन, देयर विल बी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन and removal of oxygen. यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन में दो पॉसिबिलिटीज हैं. इफ देयर इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन देन ऑल्सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इफ देयर इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन देन ऑल्सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और if in a reaction there is addition of hydrogen then it is a reduction reaction, or if there is
removal of oxygen, then also it is a reduction reaction. ऐसे समझ नहीं आएगा, चलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के साथ इसको समझने की कोशिश करेंगे. Okay, first of all, let me take up oxidation reaction. For example, if I take कॉपर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया, ठीक है, कॉपर को जब हम रिएक्ट कराते हैं हीट प्रोवाइड की जाती है और व्हाट विल बी ऑब्जर्व, इट विल फॉर्म कॉपर ऑक्साइड. आपको पता है कॉपर यूजली हमारे ये इफ़ यू सी कॉपर वेसल्स होते हैं और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कॉपर वेसल्स थोड़े से ब्लैक कोट आ जाता है उनके ऊपर. व्हाई इज इट सो? ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही तो है. कॉपर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इन नेचर, हाँ, इस तरीके से. और हीट कैसे? नेचुरली एनवायरनमेंट में हीट का है प्रेजेंस. तो इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर, in the presence of oxygen, copper reacts with it and it forms copper oxide, and this copper oxide basically it is a black coat over copper vessels. यानी नेक्स्ट टाइम आप ब्लैक कोट देखें तो आप एज अ केमिस्ट्री स्टूडेंट आप बड़े आराम से कह सकते हैं ये कॉपर ऑक्साइड का कोट है. तो इफ़ यू सी यहाँ पे हुआ क्या है, बैलेंस कर लेते हैं पहले हम. कॉपर ऑक्साइड एंड ये ऑक्सीजन है, तो आई विल बी पुटिंग 2 here 2 here. नाउ इट इज बैलेंस. फाइन. तो हुआ क्या, आप ये देखिए ना, कॉपर में ऑक्सीजन का एडिशन हो गया, तो दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन दैट इज अकरिंग, इजंट इट? ये ऑक्सीडेशन हो गया, देयर इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. सो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन किसको कह रहे थे हम? ऑक्सीडेशन रिएक्शन. व्हाट इज हैपनिंग? कॉपर के साथ ऑक्सीजन आके मिल गया एंड द कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड इज कॉपर ऑक्साइड. दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन. चलिए एक और चीज़ यहाँ पे करते हैं. अगर हमें अब क्या करना है, कॉपर ऑक्साइड को हमें ये ब्लैक कोट को, इट इज़ नॉट डिज़ायरेबल, हम इसे साफ़ करना चाहते हैं और फिर से हमें कॉपर में वही ब्राइट फिनिश चाहिए जो थी पहले. तो व्हाट वी कैन ऑल्सो डू, देखिए इसी को लेट मी टेक अप दिस कॉपर ऑक्साइड इटसेल्फ और इसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर दीजिए, ठीक है. अगेन ऑन little heat provision, what will happen? It will form copper plus water. So what is happening? यहाँ पे black coat goes away. आपको फिर से ये कॉपर मिल गया, तो ये black coat हट गया. How has it happened? अब ये देखो क्या हुआ है, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हो गया और ये कॉपर बन गया. तो what is happening? Removal of oxygen. What is it then? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. हमने अभी क्या पढ़ा था, ये है रिडक्शन, ठीक है. और यहाँ पे एक और चीज़ हुई है, यहाँ पे हाइड्रोजन में ऑक्सीजन आके ऐड ऑन हो गया है और वाटर बनाया है. तो यहाँ पे क्या हुआ है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ऐसे रिएक्शंस जहाँ पर रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ हुआ है, इन रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस. यानी रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी साथ साथ हो रहा है, तो सच अ रिएक्शन इज ऑल्सो टर्म्ड एज रिडॉक्स रिएक्शन. ऊपर जो हमने जहाँ पर कॉपर का रिएक्शन विद ऑक्सीजन दिखाया था, दैट इज रेफर्ड टू एज ओनली ऑक्सीडेशन रिएक्शन. लेकिन जो नेक्स्ट ये वाला रिएक्शन है, इसमें इफ यू सी कॉपर ऑक्साइड गॉट reduced to copper and hydrogen got oxidized to water. That means reduction and oxidation reactions are occurring simultaneously in a single reaction. So this is known as a redox reaction. Okay, now herein you should also know that what is being reduced and what is being oxidized. तो इसमें ना आप ये नहीं कहेंगे कि कॉपर इज बीइंग रिड्यूस्ड. यूजली बच्चे ऐसी गलती करते हैं, कॉपर नहीं रिड्यूस हुआ है. क्या रिड्यूस हुआ है, पूरा ये कंपाउंड कॉपर ऑक्साइड हैज़ बीन रिड्यूस्ड टू कॉपर एंड H2 दैट इज हाइड्रोजन गैस हैज़ बीन ऑक्सीडाइज्ड टू वाटर. एक और बार चेक कर लेते हैं, इज द इक्वेशन बैलेंस्ड? यस, द इक्वेशन इज बैलेंस्ड. ओके, यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आपका आता है जिसको हम कहते हैं कि व्हाट इज
रिड्यूसिंग एजेंट एंड व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हियर। आप ये देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जिससे ऑक्सीजन मिला। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिला था, किससे मिला था, कॉपर ऑक्साइड से। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे क्या रिड्यूस हुआ, कॉपर ऑक्साइड गॉट रिड्यूस्ड टू कॉपर, राइट। Second thing, this is one conclusion. Second thing, hydrogen got oxidized to water, right? अब कॉपर को रिड्यूस करने वाला कौन था, हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन इज द रिड्यूसिंग एजेंट। और हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑक्सीजन कहाँ से आया, कॉपर ऑक्साइड से। सो दैट मीन्स कॉपर ऑक्साइड इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहां से रिडॉक्स रिएक्शन से आपको 4 चीजें पता चली। 1, द एंटिटी विच गॉट रिड्यूस्ड, अनदर रिएक्टेंट विच गॉट ऑक्सीडाइज्ड, one of the reactant is the reducing agent, one of the reactant is the oxidizing agent. एक और बहुत interesting बात है, the compound which got reduced is actually the oxidizing agent and the compound which got oxidized is actually the reducing agent. तो ये आपको confusion कभी नहीं आएगा अगर आप इसको इस तरीके से समझेंगे। चलिए इसको फर्दर और समझाते हैं, एक और रिएक्शन लेते हैं। देखिए, अब मैं लेती हूँ जिंक ऑक्साइड को एंड इसका रिएक्शन कराती हूँ कार्बन के साथ। तो व्हाट विल हैपन, जिंक प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, बेसिकली कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है इसमें। तो व्हाट इज हैपनिंग हियर, जिंक से देयर इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इजंट इट। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज व्हाट, रिडक्शन। तो ये क्या हुआ है आपका, reduction has occurred here, and carbon में क्या हुआ है, addition of oxygen। तो what is happening here, this is oxidation। So you see again what type of reaction is this, this is a redox reaction wherein both reduction and oxidation is occurring। So what do you see, zinc oxide is reduced to zinc, okay, is reduced to zinc. Then another thing, carbon is oxidized to carbon monoxide. Then what is the oxidizing agent, I told you the reactant which is reduced is actually the oxidizing agent. So ZnO is the oxidizing agent, क्योंकि यहीं से तो ऑक्सीजन मिला है कार्बन को, एंड कार्बन इज द रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों, हालांकि अब आप ये सोचोगे कि मैम यहाँ पर कोई हाइड्रोजन तो आके नहीं ऐड हुआ है, लेकिन कार्बन की वजह से जिंक ऑक्साइड गॉट रिड्यूस्ड, दैट इज व्हाई इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। सो डोंट गेट कंफ्यूज अबाउट इट। Let me take one more example. This is a very important example and usually ये बोर्ड में आता है। MnO2 that is manganese dioxide plus HCl gives you MnCl2 manganese chloride plus water plus chlorine gas. Now if you see, first of all balance it. If I Mn then Cl2 here, Cl2 here also, तो that means chlorine आपके पास 4 है, यहाँ पे I will be putting a 4 here. Now हाइड्रोजन बैलेंस कर लीजिए आप, यहाँ पे 4 होगा तो यहाँ पे 4 होगा। Now you see Mn1 O2 yes, and 4H, yes 4H and Cl also 4. Now you see मैग्नीशियम ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हुआ एंड
वो मैंगनीज ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हुआ और मैंगनीज क्लोराइड बना. सो व्हाट इज इट? रिडक्शन, इजंट इट? ये तो हमने कहा था. और क्या हुआ? HCl में से हाइड्रोजन हैज बीन रिमूव एंड Cl बन गया. ठीक है, Cl2 बना. तो ये क्या है आपका? ऑक्सीडेशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. अब आप सोचोगे कि हमने वाटर क्यों नहीं लिया यहाँ पर. देखिए, वाटर हमेशा तब लिया जाता है जब आपके पास सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट्स बने हैं. यहाँ पे आपके 3 प्रोडक्ट्स बने हैं. और अगर आप देखें तो MnO2, व्हाट इज हैपनिंग हियर? MnO2 में से ऑक्सीजन रिमूव हुआ है. तो दैट मीन्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन. So MnO2 is reduced to MnCl2, right? And if I say HCl, यहाँ क्या हुआ है? इसमें से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है. तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन. सो HCl is oxidized to Cl2 बिकॉज हाइड्रोजन रिमूव होके क्या बना है? Cl2. ठीक है, तो हियर इन वाटर हम तब लेते अगर Cl2 नहीं फॉर्म होता. अगर हमारे पास सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट्स बन के आते, से MnCl2 एंड वाटर, तो वी वुड हैव नो अदर ऑप्शन, हम फिर वाटर को कंसिडर करते. लेकिन यहाँ पे क्लोरीन गैस भी लिबरेट हुई है HCl से, तो व्हाट विल बी पुटिंग अप? HCl इज ऑक्सीडाइज्ड टू क्लोरीन. ओके. अब अगेन नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट हु इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. भाई ऑक्सीजन आया कहाँ से? MnO2 से. और यही मैंने आपको पहचान बताई थी. द एलिमेंट और द कंपाउंड विच इज reduced is actually the oxidizing agent. So MnO2 is the oxidizing agent. Fine. And what is the reducing agent here? Yes, that's true. HCl which got oxidized actually is the reducing agent. अब ये भी देख लीजिए, उसी से तो हाइड्रोजन आया था. तो reducing agent is one which is a provider of hydrogen. So I hope this is also clear to all of you, and this is also a redox reaction. Why? Because both the oxidation and reduction reactions are occurring. यहीं से मुझे एक और चीज़ याद आती है. आपने जब ये चैप्टर शुरू हुआ था तो हमने एक रिएक्शन किया था कि मैग्नीशियम रिबन व्हेन बर्न with oxygen it forms ash which is magnesium oxide. So if I balance it this and this, right? So this is also the oxidation reaction. Why? Because there is addition of oxygen. So this is an oxidation reaction wherein magnesium reacts with oxygen and forms magnesium oxide. Fine. With this we are done with all the 5 different types of chemical reactions. I am sure that you have learned a lot about it, and I am sure that it is clear now. Now before ending this chapter we have 2 more topics which talks about corrosion and rancidity. Why are we taking up these 2 topics here? क्योंकि corrosion and rancidity भी क्या है? ये दोनों ही oxidation reactions हैं. Corrosion में जैसे for example if I talk about silver articles corrosion show करते हैं. कैसे होते हैं? जैसे black coating हो जाती है silver articles पे, तो black coating on silver articles. If you see your silver ring कुछ टाइम बाद ब्लैक हो जाती है. यू ऑल्सो सी कभी कभी कुछ कॉपर की जो आपके आर्टिफैक्ट्स होते हैं या कॉपर यूटेंसिल्स होते हैं, तो उसमें क्या वी ऑब्जर्व आफ्टर सम टाइम ग्रीन कोटिंग इज देयर ऑन कॉपर. ठीक है, दिस हाउ हैज़ इट अकर्ड?
Actually, this is the reaction of these metals with oxygen which is present in atmosphere. So क्या है ये? ऑक्सीडेशन रिएक्शन. सिमिलरली रैंसिडिटी भी क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन. यहाँ पे क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन ऑफ हियर इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है किसका? ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स. अब ये हमें बहुत कॉमनली हमें किस में मिलता है? देखिए, आप जो ये चिप्स खाते हैं, चिप्स के पैकेट्स, इसमें क्या है? ये दीज आर फ्राइड थिंग्स, तो इसमें फैट्स या ऑयल्स हैं. तो आप ये देखते हैं कि अगर बहुत दिनों के ये चिप्स या मठरीज, पकौड़े, जो ड्राई पकौड़ास होते हैं मसाले वाले, या मठरीज होती हैं, तो बहुत पुराना पैकेट जो होता है अगर आप उसको खाएं तो एक अजीब सी स्मेल आती है आपको. दैट अगर वो स्मेल आ गई है तो दैट आर नॉन एडिबल. अब वो आप खा नहीं सकते हैं, खाना भी नहीं चाहिए उससे. क्यों? क्योंकि उनका क्या हो गया है? वो रैंसिड हो गए हैं. व्हाट इज रैंसिड? Rancid is actually oxidation of fats and oils. Now this oxidation of fats and oils, it actually leave the edible things turning into non-edible ones. तो इसके लिए जो आपको मार्केट में चिप्स के पैकेट मिलते हैं, आपने देखा होगा कि वो चिप्स के पैकेट फ्लफी होते हैं क्योंकि उसमें एक गैस भरी जाती है विच इज़ नाइट्रोजन गैस. तो नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है उसमें? इट अवॉइड्स और प्रिवेंट्स रैंसिडिटी. तो इसलिए ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स को प्रिवेंट करने के लिए नाइट्रोजन गैसेस फिल्ड अप इन चिप्स पैकेट्स एंड दैट इज हाउ इट कैन बी प्रिजर्व्ड और इट कैन बी केप्ट इन दिस शॉप्स फॉर लॉन्ग. So herein we are done with this chapter. Corrosion and rancidity, again they are all related with oxidation. Every reaction shows either oxidation or reduction reactions. We have also dealt with different types of reactions. I'm sure that you have made your concepts clear, but still if there is any doubt, you please carry on with the practice sessions and you can always visit or post your doubts to us. Thank you so much for your time and keep studying, keep connected.